Let me make you fasticacious with a class suspense of an advanced English vocabulary, circumvallivasonage, which is a verb that goes beyond the placidness English vocabulary to encapsulate, to speak in a roundabout way, or to use circumlocution. तो इसका मतलब ये है कि मतलब घुमा फिरा के बात करके किसी को कंफ्यूज करना, इसे कहते हैं circumvallivasonage. So let's get the hang of some examples. If you're not circumvallivasinated while keeping him abreast of the accomplishment, should not be discombobulated. If you're not circumvallivasinated, अगर तुम घुमा फिरा के बात नहीं करते तो if you're not circumvallivasinated while keeping him abreast of the accomplishment, तो keep someone abreast of something means यहाँ पे जो phrase का यूज हुआ है keep someone abreast of something, इसका मीनिंग है टू इन्फॉर्म समवन अबाउट समथिंग, किसी को किसी चीज़ के बारे में बताना या उसे इन्फॉर्म करना. अब दी एक्लासिसमेंट मीन्स इन्फॉर्मेशन. अगर तुम उस इन्फॉर्मेशन के बारे में उसे बताते वक्त उसे घुमा फिरा के बात नहीं करते, शुड नॉट बी डिस्कम्बोबुलेटेड. डिस्कम्बोबुलेटेड मीन्स कंफ्यूज्ड, तो वो कंफ्यूज नहीं होता. अगर तुम घुमा फिरा के बात नहीं करते उससे, जब उसे तुम किसी चीज़ के बारे में बता रहे थे या उसे इन्फॉर्म कर रहे थे, अगर तुम उसे उसी वक्त घुमा फिरा के बात नहीं करते तो वो कंफ्यूज नहीं होता. शुड नॉट बी डिस्कम्बोबुलेटेड. तो यहाँ पे मिक्स्ड कंडीशनल यूज हुआ है. जैसे एक इफ क्लॉज यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और जो मेन क्लॉज वो वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 यहाँ पे यूज हुआ है. तो ये मिक्स्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर है. आप इसे मेन क्लॉज को ऐसे भी लिख सकते हैं, he would not be discombobulated. इसको आप रिप्लेस करके ऐसे भी लिख सकते हैं, he would not have been discombobulated. he would not have been discombobulated. अब तुम उसे घुमा फिरा के बात नहीं करते उसके साथ तो वो कंफ्यूज नहीं होता. If you would not circumvallivasinated while keeping him abreast of the accomplishment, should not be discombobulated. The next one is the snolligest of politicians more often than not circumvallivasinated whenever they're gaslighted about the bastardization. The snolligest of politicians. तो यहाँ पे जो लिखा है वर्ड snolligest, snolligest means someone who is unprincipled, who is not honest. जो धोखेबाज बेईमान होते हैं उन्हें कहते हैं snolligest. तो ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो धोखेबाज बेईमान पॉलिटिशियन होते हैं, जो सिर्फ बातें करते हैं, वो काम में कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ झूठे वादे करते हैं लोगों से, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन कुछ करते नहीं है, उन्हें कहते हैं snolligest. The snolligest of politicians more often than not means always. circumvallivasinated. circumvallivasinated means वो घुमा फिरा के हमेशा बात करते हैं. The circumlocutor, the resort to circumlocutions whenever they're gaslighted. Gaslighted means when they are questioned, जब उन्हें सवाल किया जाता है about the bastardization, उनके वजह से जो करप्शन हुआ है, it's the art of corrupting something, और इट इम्प्लाइज द लोअरिंग क्वालिटी. जब वो चीज़ को करप्शन करते हैं, जब उसके बारे में उन्हें सवाल किया जाता है उन पॉलिटिशियन से, तो वो घुमा फिरा के बात करते हैं ताकि वो सच को छुपा सकें. तो इसका मतलब क्या है? द snolligest of politicians more often than not circumvallivasinated whenever they are gaslighted about the bastardization. The next one is the students are contemptuous of the professor's lecture in as much as is given to circumvallivascination. The students are contemptuous. Contemptuous means to hate something. तो जो स्टूडेंट्स है वो प्रोफेसर के जो लेक्चर को वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं. They hate it. The students are contemptuous of the professor lecture. That means the students don't like the lecture of the professor because in as much as means because. अब सिंपल में because यूज करते हैं, एडवांस में in as much as यूज कर सकते हैं, notwithstanding यूज कर सकते हैं, in that यूज कर सकते हैं, seeing that, ऐसे बहुत सारे एडवांस फ्रेज से आप because को रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं. क्योंकि he is given to circumvallivascination. तो यहाँ पे circumvallivascination as a noun यूज हुआ है क्योंकि वो हमेशा घुमा फिरा के बात करते हैं, वो उससे एडिक्टेड है, ये उनका नेचर है. जब भी बात करते हैं वो हमेशा घुमा फिरा के बात करते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स उनका लेक्चर सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो बोर हो जाते हैं. द स्टूडेंट्स आर contemptuous of the professor's lecture in as much as is given to. ये जो वर्ड लिखा है given to means he is addicted to, he is prone to, he is given to circumvallivascination. The next one is
The philosophical professor of English had to Sakyum very fascinated when he was asked to rhapsodize the meaning of his Sesquipedalian. Notwithstanding, he was unbeknownst to it. The philosophicalist is an advanced English vocabulary which means someone who acts as if he is very important और as if he knows everything. मतलब एक ऐसा इंसान जो कि ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे सब कुछ पता हो, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है. जो उसे रियलिटी में वो बस उसे प्रिटेंड करता है कि उसे सब कुछ पता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बात करता है कि उसे पता, जैसे मानो उसे सब कुछ पता है, लेकिन वो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है. उसे कहते हैं, उस इंसान को कहते हैं जो हमेशा बढ़ा चढ़ा के बात करता है, उसे कहते हैं हम फिलोसॉफिकलिस्ट. समवन हु एक्ट्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग और ही इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो प्रोफेसर होते हैं, जो फिलोसॉफिकलिस्ट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, तो जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं जो नेचर में फिलोसॉफिकलिस्ट है, वो इससे बात करते हैं ताकि उन्हें जैसे उन्हें सब कुछ पता हो. हालांकि ऐसे प्रोफेसर भी हैं जो मतलब आप उन्हें एडवांस्ड इंग्लिश बोलो, अगर उन्हें नहीं आता हो तो वो आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं है. तो ये सब आप सिंपल इंग्लिश बोलिए, ये एडवांस्ड इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसे प्रोफेसर को बोलते हैं हम फिलोसॉफिकलिस्ट. वो ऐसे बोलते हैं क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं होता है एडवांस्ड इंग्लिश के बारे में. तो उन्हें हम कहते हैं फिलोसॉफिकलिस्ट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हैड टू साक्यूम वेरी फैसिनेट. तो उन्हें घुमा फिरा के बात करना पड़ा. When he was asked to rhapsodize means to explain the meaning of a sesquipedalian means a difficult long English word. A long bombastic English or sesquipedalian means so long English words होते हैं जैसे supercalifragilisticexpialidocious, eloguphasiahipopoconerius, hippopotamus sesquipedalophobia, floxinus nihilipilification. ऐसे वर्ड्स को कहते हैं सेस्क्यूपेडलियन. बहुत लॉन्ग और डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स को कहते हैं सेस्क्यूपेडलियन. Notwithstanding, he was unbeknownst to it. Unbeknownst to means he was not aware of it. तो जो प्रोफेसर थे, फिलोसॉफी इंग्लिश प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश थे, तो उन्हें घुमा फिरा के बात करना पड़ा जब उन्हें एक सेस्क्यूपेडलियन को एक्सप्लेन करने को बोला गया. उन्हें पूछा गया कि ये सेस्क्यूपेडलियन इस डिफिकल्ट वर्ड को एक्सप्लेन कीजिए. वो उन्हें घुमा फिरा के बात करना पड़ा क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता नहीं था. Because he was unbeknownst to it, he was not aware of it, he was not cognizant of this Sesquipedalian. That's why he had to Sakyum very fascinate, or he had to Sakyum locate. The philosophical professor of English had to Sakyum very fascinate when he was asked to rhapsodize the meaning of a Sesquipedalian. That is running, he was unbeknownst to it. So that's all for today. Obfuscating you to be perspicacious with its advanced English vocabulary, Sakyum very fascinate to grasp it yourself. Thank you.